गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जब बॉम्ब कैलोरीमीटर कंप्लीट हो गया था क्या फॉर्मूला लिखवा दिया था? कहाँ तक हुआ था बॉम्ब के अंदर? बताएगा कोई आप लोगों में से बॉम्ब के अंदर कहाँ तक लिखवा दिया था, कहाँ तक हुआ था? ये कंप्लीट हो गया था फॉर्मूला तक? है कुणाल? नहीं मैम, प्रिंसिपल लिखाया था, बाकी आपने समझाया था। यस मैम। अच्छा, लिखवाना है फिर स्टार्ट ही कर दूं नेक्स्ट? लिखवाना है, लिखवा दो। अच्छा चलो लिखवा देते हैं प्रिंसिपल्स के आगे। ठीक है, प्रिंसिपल के आगे लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए the bomb calorimeter is made up of stainless steel, is made up of stainless steel. Second point, on the top bomb bomb is provided with a lead LID or gas tight screw cap ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, this lead is provided with two stainless steel electrodes and oxygen inlet valve नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट, one of the electrode is provided with a ring by which silica or nickel or stainless steel crucible can be attached. Next point, this crucible contain the given sample of fuel नेक्स्ट लाइन में this bomb calorimeter is placed in copper calorimeter
during experiment, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट, the copper calorimeter is surrounded by air jacket and water jacket to prevent the loss of heat due to radiation, ठीक है. ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है जो आपको एक्सप्लेन भी कर दी थी. उसके बाद में लिखिए इसकी वर्किंग लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, known amount of fuel sample is taken in crucible. Known amount of fuel sample is taken in crucible. Next point, the crucible is supported over the ring. Third point, the lead of the bomb is tightly screwed and bomb is filled. ये थर्ड वाली लाइन चल रही है. tightly screwed and bomb is filled with oxygen at about 25 atmospheric pressure. Next line में, after this the magnesium or platinum fuse wire is stretched across the electrodes. Next point में लिखिए, initial temperature of water in copper calorimeter is noted. Next point, the electrodes are connected to battery. Next point, the coal sample burn and liberated heat is absorbed by water. During this process, uniform stirring of water is done. Next point, after the maximum temperature
the maximum temperature is attained, the final temperature of water, the final temperature of water is noted, the final temperature of water is noted. Next point, the stirrer is now stopped, the stirrer is now stopped, and bomb removed from calorimeter, bomb removed from calorimeter and allowed to stand, and allowed to stand for about half an hour, for about half an hour. Next point, the calorific value of coal sample, the calorific value of coal sample is now calculated, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गई, डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा अभी तक। उसके बाद में लिखिए इसकी कैलकुलेशन लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखो, वेट ऑफ कोल सैंपल या फिर फ्यूल सैंपल, वेट ऑफ कोल सैंपल ब्रैकेट में फ्यूल सैंपल is taken in crucible equal to x ग्राम, यानी जो प्रोसेस के लिए कोल सैंपल या फिर फ्यूल सैंपल अमाउंट लिया वो कितना होगा, x ग्राम। सेकंड पॉइंट, weight of water taken in calorimeter equal to, weight of water taken in calorimeter equal to capital W ग्राम, फिर लिखिए थर्ड पॉइंट, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, कॉमा स्टीरर थर्मामीटर and bomb equal to small w ग्राम। यहाँ पे देखो, एक है कैपिटल W और सेकंड है स्मॉल w, इक्वल टू स्मॉल w ग्राम। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल टू T1 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, इक्वल टू T2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, हाई और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल सैंपल, इक्वल टू, यानी एज्यूम किए कि कितनी हीट लिबरेट हो सकती है, इक्वल टू कैपिटल एल कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट लाइन में, हीट लिबरेटेड by the burning of fuel equal to
XL, X क्या है? वेट ऑफ कॉल सैंपल, L जो अज्यूम किया गया है कैलोरी। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट, हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर, हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल W इंटू, यहां से लिखो कैपिटल W इंटू S, ब्रैकेट में लिखो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में लिखिए S में बी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको आप छोड़ भी सकते हो S को, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डेटा नहीं गिवन होता है, तब सिंपल अपन लिखते हैं W T2 माइनस T1। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हीट अब्जॉर्ब बाय apparatus, हीट अब्जॉर्ब बाय apparatus, ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल w T2 माइनस T1, स्मॉल w T2 माइनस T1, देन ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में टोटल हीट अब्जॉर्ब, टोटल हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर, by water and apparatus equal to, by water and apparatus equal to, यानी वाटर किससे कितनी हीट अब्जॉर्ब की वाटर ने, apparatus ने कितनी की, दोनों को फिर एक साथ लिखेंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगी अपने पास। लिखिए ब्रैकेट में कैपिटल W प्लस स्मॉल w अब ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है तो इसको मत लिखो आप लोग, इनटू करके लिख दो T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गई इक्वेशन, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1। फिर ये जो अपन बॉम्ब कैलोरीमीटर लेके चल रहे थे, इसका प्रिंसिपल क्या था, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर एंड apparatus, ये इसका प्रिंसिपल था। तो ये लाइन लिखिए फिर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, according to principle, heat liberated by fuel equal to heat liberated by fuel equal to heat absorbed by water and apparatus, by water and apparatus। अब कितनी हीट लिबरेट हुई है उसको अपन ने यहाँ पे अज्यूम किया था, दैट इज XL। तो यहाँ पे लिख दिया XL इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब कितनी हुई थी, ये वाली इक्वेशन इक्वल टू करके लिखोगे कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1। ठीक है, उसके बाद में L यानी जो HCV इक्वल टू क्या जाएगा, ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ये फाइनल इक्वेशन लिख लो, कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 अपॉन X, यूनिट आपको बता दी थी कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी। यहां तक लिख लो इसको। ठीक है, ये था HCV के लिए फॉर्मूला। फिर आप लोग लिखो LCV का फॉर्मूला, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वही सेम यहाँ पे यूज होगा। ये LCV के लिए लिख लो, LCV इक्वल टू ये वाला लिखो फॉर्मूला, LCV इक्वल टू HCV माइनस HCV माइनस 0.09H, 0.09H, H हाइड्रोजन है यहाँ पे, 0.09H हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम का अमाउंट कितना होता है 587। तो ये इक्वेशन है फॉर LCV, LCV का फॉर्मूला। उससे पहले जो लिखा है वो HCV का फॉर्मूला होगा।
यहाँ तक लिख लिया सभी ने? यूनिट्स लगा देना इसकी, कैलोरी पर ग्राम या फिर किलो कैलोरी पर केजी। फिर लिखिए नेक्स्ट करेक्शंस। अभी जो अपने पास ये HCV का फॉर्मूला मिला है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर कुछ करेक्शंस होंगे एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑब्टेन करने के लिए, वो यहाँ पे करेक्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ करेक्शंस। लिखिए इसमें टू गेट more accurate results, to get more accurate results, the following corrections must be considered. The following corrections must be considered. First point लिखो fuse wire correction. First point fuse wire correction. इसमें लिखिए the heat liberated or produce, the heat liberated or produce as measured in the calculation of, as measured in the calculation of calorific value, calorific value, include the heat given out, include the heat given out by the ignition of, by the ignition of fuse wire use, by the ignition of fuse wire use. It must be subtract from, it must be subtract from the total value, total value, यानी जो HCV अपने को ऑब्टेन हो रहा है उसकी एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए क्या करेंगे अपन, फ्यूज वायर में से जो फ्यूज वायर करेक्शन अपने को मिलेगा उसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि फ्यूज वायर जब, जो मैग्नीशियम फ्यूज वायर है, जब वो हीट होगा तो उससे भी हीट लिबरेट होगी, ठीक है। तो जो हीट लिबरेट होगी उसको कौन ऑब्जर्व कर सकता है? सराउंडिंग में जो वाटर था वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑब्टेन करने के लिए इस अमाउंट को, फ्यूज वायर करेक्शन का जो डेटा आएगा उसको क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। सेकंड है एसिड करेक्शन। सेकंड लिखिए एसिड करेक्शन। लिखिए इसमें फ्यूल कंटेनिंग, फ्यूल कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर, fuel containing nitrogen and sulfur are oxidized, are oxidized। फिर ये वाली रिएक्शंस लिखो, सल्फर ऑक्सीडाइज इनटू H2SO4 प्लस हीट एंड नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज इनटू HNO3 प्लस हीट। ये दोनों रिएक्शंस लिख लो, यहाँ तक लिख लो। सल्फर एंड नाइट्रोजन की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखिए these reactions are exothermic, these reactions are exothermic and the major heat, and the major heat also include, also include the heat given out, the heat given out during the acid formation, during the acid formation. It must be subtract from, it must be subtract from the total value, from the total value। ये था सेकंड करेक्शन, एसिड करेक्शन। इसको भी क्या करना होगा, टोटल अमाउंट में से माइनस करना होगा,
क्योंकि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इससे जो हीट लिबरेट होगी उसको कौन ऑब्जर्व कर सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस? वाटर। और एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए इस अमाउंट को माइनस करना होगा। नेक्स्ट है कूलिंग करेक्शन। नेक्स्ट थर्ड करेक्शन इज कूलिंग करेक्शन। लिखिए इसमें टाइम टेकन to cool the water, time taken to cool the water in calorimeter from maximum temperature to room temperature is noted। यानी एक बार तो हीटिंग के टाइम जितनी हीट लिबरेट हो रही है, उसके बाद में कूलिंग के टाइम भी ऐसा तो नहीं कि एकदम से कूल हो जाएगा, कूलिंग के टाइम में भी हीट लिबरेट होती रहेगी। तो जो उस टाइम हीट लिबरेट हो रही है वो क्या कहलाता है? कूलिंग करेक्शन इज नोटेड। नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम द रेट ऑफ कूलिंग and actual time taken for cooling, कॉमा करके कूलिंग करेक्शन is added to increase in temperature तो ये जितने भी करेक्शंस आपको मिले, फ्यूज वायर, एसिड एंड कूलिंग करेक्शंस, इन सारे करेक्शंस को करने के बाद में अपना जो फॉर्मूला अपने को मिला था HCV का, ये वाला फॉर्मूला, उसमें चेंजेस होंगे एंड चेंजेस होने के बाद में अपना फॉर्मूला हो जाएगा ये HCV का, ये फॉर्मूला हो जाएगा आफ्टर करेक्शंस। अब लिखिए इसको HCV इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ब्रैकेट में लिखो इसको, स्क्रीन पे देखते रहना, कैपिटल W प्लस स्मॉल w ब्रैकेट क्लोज, फिर देन नेक्स्ट दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट करो, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, T2 माइनस T1, इसको लिख लो देख के, T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन, T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट में लिखो एसिड प्लस फ्यूज वायर करेक्शन, ब्रैकेट में लिखो एसिड प्लस फ्यूज वायर करेक्शन, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल, ठीक है। तो ये आफ्टर करेक्शन जो स्टार्टिंग में अपने को HCV का फॉर्मूला मिला था, उसमें ये सब चेंज हो जाएगा एंड LCV का फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो आपको इससे पहले बताया था, ये वाला LCV इक्वल टू HCV माइनस 0.09H इंटू 587, H हाइड्रोजन है, 587 क्या है? लेटेंट हीट ऑफ स्ट्रीम, और ये आपने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया विद करेक्शंस, ठीक है। तो जब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर का, तो इसमें ये सी पार्ट में पूछा जाता है, जो मैक्सिमम मार्क्स वाला सी पार्ट है, तो उसमें आपको एक कंप्लीट लिखना होगा। कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करोगे प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम और कंप्लीट ये कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद में करेक्शंस भी लिखने हैं। अगर करेक्शंस नहीं लिखते हैं तो फुल मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे। तो सी पार्ट के लिए क्वेश्चन है और उसमें आपको कंप्लीट लिखना है प्रिंसिपल से स्टार्ट करके यहाँ करेक्शंस तक। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि करेक्शंस नहीं लिख के आते हैं तो उनके मार्क्स कट जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि करेक्शंस भी इसमें आपको लिख के आने हैं अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक और रहेगा इसमें।
इसका न्यूमेरिकल लिखिए। न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना क्योंकि इसके बाद वाला सेकंड न्यूमेरिकल आप लोगों को ही करना है। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल देखिए 2.3 वाला न्यूमेरिकल दिख रहा है सभी को। 2.3 का न्यूमेरिकल देखिए कि कॉल सैंपल कंटेन कार्बन 93, हाइड्रोजन 6% एंड एस 1%। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन, लिखो मत एक बार इसको। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट डेटा इसमें आपको मिला है वेट ऑफ द क्रूसिबल, यानी जो क्रूसिबल आपको बॉम्ब में रखा हुआ दिख रहा था, स्टेनलेस स्टील का, सिलिका का भी बना हो सकता है, उसका वेट कितना है 3.649। विद फ्यूल सैंपल उस क्रूसिबल का वेट कितना है 4.678। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज 570। वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर 2200 ग्राम। अब इसमें से आप आइडेंटिफाई कर लो कि कैपिटल डब्ल्यू कौन सा और स्मॉल डब्ल्यू कौन सा है। तो जो वाटर का वेट है कैपिटल डब्ल्यू वो कितना है, ये वाला कैपिटल डब्ल्यू है ये, और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ये है स्मॉल डब्ल्यू। फिर नेक्स्ट डेटा कौन सा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जो T2 माइनस T1 है, फॉर्मूला देखते हुए चलना अपनी कॉपी में। इंक्रीज इन टेम्परेचर है 2.3, कूलिंग करेक्शन ये दिया हुआ है 0.047, एसिड करेक्शन 62.6 कैलोरी, फ्यूज वायर करेक्शन 3.8। इसको लिखो मत, एक बार देख लो बस स्क्रीन पे। इसमें आपको कैलकुलेट करना है HCV एंड LCV, ये जो भी डेटा गिवन है इनसे, और उसमें हाइड्रोजन कितना गिवन है 7%। तो फर्स्ट आपके पास जो फॉर्मूला है HCV का वो सभी को याद हो जाना चाहिए। क्या है HCV का फॉर्मूला, कैपिटल W प्लस स्मॉल w, T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड और फ्यूज वायर करेक्शन डिवाइडेड x। x क्या है, वेट ऑफ कॉल सैंपल। अब कैपिटल W कौन सा था, ये वाला देखो, वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर, कैपिटल W लिख दिया यहाँ पे। फिर स्मॉल w 570 ग्राम ये लिख दिया। फिर T2 माइनस T1 इंक्रीज इन टेम्परेचर था इनिशियल एंड फाइनल, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है 2.3। कुछ न्यूमेरिकल्स में ये देख भी रखते हैं कि T1 इज दिस एंड T2 ये, तो उसमें आपको कैलकुलेट करना होगा, इन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको बता दिया है, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे अपन T2 माइनस T1 की जगह 2.3। कूलिंग करेक्शन कितना गिवन है 0.047, ये पुट कर दिया। एंड एसिड करेक्शन की जगह जो भी डेटा गिवन है 62.6 वो पुट किया, फ्यूज वायर की जगह 3.8। एंड वेट ऑफ कॉल सैंपल जो डिवाइड करना था वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कि विद कॉल सैंपल 4.6 वेट था जो यहाँ पे लिख दिया देखिए आप लोग, एंड माइनस एम्प्टी क्रूसिबल का वेट 3.6 था, दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ कॉल सैंपल दैट इज 1.029 ग्राम। तो यहाँ पे इसको लिख दिया 1.029 ग्राम। इसको सोल्व करने पे अपने पास HCV आ जाएगा 6253 कैलोरी पर ग्राम। फिर आपको LCV कैलकुलेट करना है। LCV का फॉर्मूला क्या होगा, HCV ग्रोस या HCV दोनों सेम है, तो HCV माइनस 0.09H इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। HCV यहाँ से आप लिखोगे 6253 एंड 0.09H। एच देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल में ये गिवन है 7, ठीक है, तो H की जगह 7 लिख दिया। एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आपको याद हो जाना चाहिए 587। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास LCV की वैल्यू आ जाएगी 5883.6 कैलोरी पर ग्राम। इसी में ठीक है, आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए और सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है, उसके अलावा कोई हार्ड नहीं है न्यूमेरिकल, ये ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि हार्डनेस वाले न्यूमेरिकल में फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग ये लगाना पड़ता था कि किसको लाइम रिमूव करेगा, किसको सोडा रिमूव करेगा, कौन टेम्परेरी है कौन परमानेंट है, इसमें तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है।
आ गया सभी को समझ में या किसी को कुछ डाउट है? इसमें 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं। एक तो बॉम्ब के हो जाएंगे जो अभी आपको करवा दिया है, उसके बाद में एक और ऑपरेटर्स है जंकर्स, उसके न्यूमेरिकल है। फिर डुलोंग डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज होगा उसका न्यूमेरिकल, उसके बाद में कंबशन। तो नेक्स्ट वीक में एक थ्योरेटिकल टॉपिक और बचा है, उसके बाद में सब न्यूमेरिकल्स ही करवाने हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछना है किसी को कुछ? फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे, लाइम सोडा से तो बहुत छोटा है फॉर्मूला। ठीक है, लिखवा दो फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आप लोग होमवर्क में सोल्व करके लेके आना, ठीक है? और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वाली क्लास में पूछ लेना। अब होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल लिखो। कॉल सैंपल कंटेन कार्बन 85%, कार्बन 85%, हाइड्रोजन 6%, हाइड्रोजन 6%, and remaining as the following data were obtained. The following data were obtained in bomb calorimeter. The following data were obtained in bomb calorimeter. First point लिखो, weight of coal sample 0.85 gram, weight of water taken 1200 gram, water equivalent of apparatus 250 gram, initial temperature 25 degrees Celsius, final temperature 28.02 degrees Celsius, cooling correction 0.03 degrees Celsius, fuse wire correction 10 calorie, acid correction 50 calorie. Calculate HCV and LCV of coal sample if latent heat of steam is 580 calorie per gram. इसको आपको होमवर्क में सोल्व करना है और मुझे आंसर आप लोग सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना मुझे। लिख लिया होगा सभी ने? हाँ कुणाल, दोबारा डेटा बता रही हूँ मैं। कॉल सैंपल बर्न किया हुआ है 0.85 ग्राम, वाटर टेकन, वेट ऑफ वाटर 1200 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट 250 ग्राम, T1 इनिशियल टेम्परेचर 25, T2 28.02, कूलिंग करेक्शन 0.03, फ्यूज वायर करेक्शन 10 कैलोरी एंड एसिड करेक्शन 50 और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इसमें गिवन है 580। यही पूछना था क्या कुणाल तुम्हें? अगर कुछ और पूछना तो व्हाट्सएप कर देना मुझे।